6 ओवर का मैच खेला जाएगा। स्ट्राइक पे आए मुनव्वर और अंसार खुद आए हैं इस बार मैच खेलने के लिए। और सीएट टाइटन के बॉलिंग करेंगे रफीक। पहला गेंद सामना करेंगे मुनव्वर। ए ले बेटा, गेम सीधा सीमा रेखे के बाहर। 6 रन से शुरुआत, अच्छी शुरुआत हुई है मुन्ना की। यहाँ पे 6 रन से अपना खाता खोला है मुनव्वर। हमारे कमेंटेटर थोड़ा जलपान कर रहे हैं, जलपान। अच्छी शुरुआत। ओहो हो, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन पे। अभी खराब शुरुआत रफीक द्वारा। एक गेंदों में अब तक 7 रन दे चुके हैं। अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे मुनव्वर। ये लेग घुमा के, और ये एक बाउंस होके सीधा सीमा रेखे के बाहर। 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 11। मुनव्वर 10 पे खेल रहे हैं। मुन्ना अपने आखिरी लीग मैच में खुद कप्तान ने जिम्मा संभाला है। ओपनिंग में आए हैं खेलने के लिए। पिछला मुकाबला हमने देखा था, यहाँ पे क्या मुकाबला था सनराइज और किंग्स के बीच में। रियाज ज़बरदस्त गेंदबाजी के बदौलत एक अच्छी जीत यहाँ पे हुई थी। और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में। अकीफ फील्ड नहीं कर पाए जब तक कि 1 रन चुरा लिया वहाँ पे अंसार ने। स्कोर बढ़ता हुआ 12। काफ़ी मजबूत स्थिति में इंडियन सुपर किंग्स। अगला गेंद मुनव्वर सामना करेंगे अंसार। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद, मगर वहाँ पे 1 रन चुराने की कोशिश मुनव्वर ने नकारा। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कमेंटेटर। अगला विवरण देंगे आपको इंग्लिश में भी। रफीक, ओहो, घुमाने की कोशिश जरूर की थी, मगर 1 रन बाइस के रूप में आता हुआ। अंपायर का इशारा 22, लेग 22। स्कोर बढ़ता हुआ 13। मुनव्वर जाने माने खिलाड़ी उडुपी के, अपनी पहली लीग मैच में अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। देखना होगा इस बार क्या करेंगे। ये फुलटॉस गेंद घुमा दिया है। 4 रन सीमा रेखे की बात। स्कोर बढ़ता हुआ 17। एक ओवर की समाप्ति 17, बिना कोई विकेट खोए हुए इंडियन सुपर किंग्स। So, very good morning, and what a start once again. The change in the batting pair, and this time the Munawar promoted himself up the order. He's batted beautifully in the second game yesterday. He scored around 70 runs. Alone, he won the match for the team. In the last game, in the previous game, he lost the wicket in the very first ball of the last over when the team required 11 of 6 balls. What a comeback by Sunrisers in the last game. Shoaib into the attack. Started with the full length ball, played back to the ball or jut ball to begin with. You are watching live action through Prince Movies. For the second time in the over. Short pitch ball. The ball towards the middle and collects a single. Answer up the mark with a single from 4 balls. And Munawar back on the strike. He's batting on 14 from 4 balls. Enjoying the batting. Down the leg, wide call by the umpire, the senior most umpire Ibrahim and Raghu, the umpires officiating in this game. Down the leg. Anything down the leg, it would be a call to wide.
Inside edge, the wicketkeeper. It's good to stop the ball. That's good work by the wicketkeeper. The dot ball. It's a very tight over so far. In this over, just consider 2 runs from 3 balls. Shoaib looking in a very good time. Inside edge. That's good bowling from Shoaib. Continues. Just single run Hello. in the ball number 4. Shoaib to answer. Full toss ball, nicely played. The long chase for the mid wicket fielder. The batsman is coming back for the second run. Easily taken the 2 runs. Team score moves on to 22. 1 ball remains. Shoaib bowled a very good power play over here. The first over going for 17 runs, and Shoaib pulled back the thing. Just consider 5 runs. Last ball remains in the over. Short pitch ball is bounced to end the over. That's a very good bowling from Shoaib. Just a 6 runs in the power play. And the team considers 17 runs in the first over. That's a very good comeback over from Shoaib. Team scored 23 end of 2 overs. You can watch all the live action through YouTube Prince Movies channel. Please subscribe and you can watch all the live action. The very good technician working behind this team for Majestic Premier League for the third season from Endpoint Ground Manipal. Munna into the attack. Munna to Munna. Munawar to Munawar. Oh my goodness! A very soft dismiss. The short pitch ball. Munawar just would have played. Sorry, it's not Munawar. It's the Answer. Gets out. And the big man is coming in now. Parvez, what a game he had in the previous game. He pelted the bowlers all over the park. One after his wicket. When the team required 10 balls, 11 from there on, Sunrisers went out to win the game. The Pura Paisa Fasul match. 10 balls, 11 from there, Sunrisers bounced back to the game. Straight away, Parvez wanted to go for the big shot, looking to clear his favorite area, the square boundaries, completely beaten. That's a good start from Munna. Oh, the beautiful ball, the big mix up in the pace, over through the air, and the good length area generated some extra bounce. Parvez connect the ball. Full toss ball in the air. But will going to be a sail over. No chance for the fielder. And Parvez started the scoring by scoring a 6 over the wide edge. That's the length. That's the area. But Parvez is too good enough. Nothing wrong with this delivery, but too good a batsman. He supples and he made the room and played it over the long leg for the
that momentum going forward. That's been too good in the power play. Now the once again it is the new ball. It will be a challenging for the batter. Not going to be easy to strike from the ball number one. Again, it's the length ball inside edge. There is the man coming and collecting the ball from the long leg. Just kept for the single. Now it will be an interesting task. What will be a plan from Shoaib to Parvez? Parvez love the ball which coming on to him. He will, most of the ball he will like to clear the square of the boundary. What will be the plan from Shoaib? Look at that's the beautiful ball. Once again, Shoaib love to just kept for a single. Third ball. Now can't be too predictable. Need to be changed. That's a good change, but a very good connection from Munawir. That's a good length ball. He was waiting. He was ball once again. Trying to ball that angling archer by missed by the margin and white call by the umpire. Here, the one more run added to the total team score 44. So very good start from Super Kings once again. That's a good one. That's a good ball. One good land ball and Munawar belted over the mid wicket for a six. Two balls remains. Parvez is batting on 12 from six balls. His target leg by runs. Oh my goodness. And going for the referral for the white ball. Shuffles. Todo el mundo está en su
Atif started with the dot ball. Uses the angle very well. In the previous game too. That's a big wicket. Atif. In the last moments in the Todo el last mundo game, en su viajillo en la he disco brought into fincao the y la attack madre and que he's no doing diga a que very yo good. Clear the square boundaries. Most of the batters love to play target the square boundaries. So it will be a very big task from the batsman from there to connect the ball and clear the ropes. That's a good bowling from Atif. He bowled a very good over in the last game, in the last over. Now that's a good one. That's a very good over. Wicket. Wicket and a 3 dot ball on this over. And Munawar remains on the non-striker end. Team score 50 runs. Last 9 balls remains. You have seen the bowler picking up 5 wickets in the last over. Riaz picked up 5 wickets in the last over. It will be one of the records. That's a good ball. Would have been stopped that ball. That's good, great bowling from Ati. Just a single. 2 more balls remains, and Munawar will going to be a strike. We know that the bowler Atif will love to keep the ball away. He will target that guideline, wide guideline, and angle. What will be the plan from the batter Munawar? Munawar is a very good batsman. That's that's a good one. That's a very good improvisation from the batsman. He waited. That's a long chase. That's a good work from the fielder too. Still, just a 2 runs. 2 runs, and Atif is bowling a very good over here. 3 runs and a wicket. Last ball remains in the over number 5. Looking to score and finds the man, Atif. Ah, what a over! Just a 3 runs and 2 wickets, and also the two big wicket. One is powerful. For the batter when the ball is bowled a slow ball, when it will be a full length or the fast ball, it will be easy to scoop the ball and collect the few runs behind the wicket, but it is not going to be easy for the slower bowler. Last ball, last over, sorry, last over. Anas in the air. It will be no chance, no chance. It would have been gone for the ما catch. يطلع It would مني have been, الا ما ball from Anas struck him on the body. It will be leg byes. Just a single run collected. That's a good shot.
beautifully played. We had to wait and see for the umpire's signal. And yes, one bounce over the rope at the boundary. That's a very good shot. أحلامي فيا therapy and मणिपाल रॉयल्स। तो ये जबरदस्त मैच होने वाला है दोनों टीम के बीच में।
भी 6 ओवर के अंदर ही, यानी कि 36 गेंदों में 70 रन। तो मणिपाल कैपिटल्स की टीम ने कप्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और उसके जवाब में क्या क्या होगा क्या नहीं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मैच में फोकस करते हैं। पहली गेंद नो बॉल, तो नो बॉल से ये एक रन चेज की शुरुआत हो रही है। लीजिए नो बॉल और एक रन भागते पूरा किया। फ्री हिट गेंद थी, उछाल कर खेला जरूर है, गेंद बहुत देर तक हवा में रही, और देखिए मिड विकेट के फील्डर को हरकत में आना पड़ा। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा हो रहा है। एक और बार चेक किया जा रहा है इस एक फील्ड को लेकर, क्या गेंद कमर से ऊपर थी या नहीं, वो चेक कर रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या फैसला आता है बाहर। अनफील्ड डिसीजन, फील्ड डिलीवरी, अनफील्ड डिसीजन क्या है सर? अनफील्ड तो नो बॉल है, तो एक और नो बॉल इसी बीच हमें देखने को मिल रहा है। और परवेज थोड़ा बहुत बोखला कर गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्री हिट गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से खेला है और 1 रन बड़े आसान तरीके से चुराया। शायद 2 रन की मांग हो रही थी, मना किया दूसरे रन के लिए। वापस भेजते हुए बल्लेबाज शोएब, बिल्कुल शोएब अब स्ट्राइक पर। तो कुल मिलाकर रन संख्या है 5 बगैर किसी नुकसान के। स्टेप आउट होकर आगे गए, खिलाएं का बेहतर इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड खेला जरूर इस बार। और लीजिए एक और अच्छी फील्डिंग इसी बीच हमें देखने को मिलती हुई। लॉन्ग ऑफ फील्डर के दरमियान, लॉन्गर फील्डर काफ़ी चुस्त और मुस्त नजर आए। झपट्टा मार के उस गेंद को उन्होंने फील्ड किया, पलट कर थ्रो भी किया था, जाकर 1 ही रन बना है। 1-1 से ये दोनों खिलाड़ी आपस में स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल पे भरोसा रख रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि गेंदबाज परवेज जो है ना वो काफ़ी अच्छी गेंदबाज है। और ये लीजिए इसी बीच एक जबरदस्त तरीके का शॉट हमें देखने को मिला, कैच भी छूटा, ऊपर से 2 रन भी, 1 रन। एक ही रन ना, तो एक और बार झट से पोजीशन में आए और उस गेंद को खेला मिड विकेट के इलाके में। शॉट मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं था, इसीलिए तो शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर हरकत में आए, तक जाकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते। इसी बीच 1 रन बड़े आराम से उन्होंने चुराया, और ये शायद खतरा मंडरा रहा है रनआउट का। अब देखने वाली बात है कि क्या बल्लेबाज जो है उस लक्ष्मण रेखा के अंदर है, उनका पैर तो ये देखनी होगी। अब बिल्कुल सेफ है ऐसा लग रहा है अभी अंपायर के हाव भाव से। कल के दिन एक मैन ऑफ द मैच वैसे ही पेंडिंग रह गया था, तो कहीं ना कहीं अब आना होगा अजीम को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के लिए। अजीम वाइड, तो अजीम सर को अब जल्द से जल्द आना होगा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के लिए, क्योंकि कल के मैच में ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया था। लीजिए आज अजीम सर, हाँ वाइड के लिए चेक कर रहे सर, क्या क्या दिया है और वाइड है करके कह रहे हैं अंपायर। तो लीजिए अंपायर वाइड, इट्स अ वाइड।
कैमरा मैन ना, तो बाहरी किनारा क्या लगा था यहाँ बल्लेबाज का, ऐसा लग रहा है विकेट कीपर की हाव भाव से तो कहीं ना कहीं बिल्कुल किनारा लगा है करके। लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पर फील्डिंग हमें देखने को नजर आई। पीछे बैकअप खड़े हुए फील्डरों के द्वारा बहुत बढ़िया योगदान, कोई रन नहीं दिया ओवर की अंतिम गेंद में। तो पहले 6 गेंद अब जाकर समाप्त हो रही है। एक और समाप्ति के बाद 10 रन, एक और का खेल समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं रन चेज में, और कोई विकेट नहीं खो रही है टीम। टाइटन्स। तो अब गेंदबाज फहीम फहीम हाँ नहीं शकीब शकीब आ रहे हैं गेंद लेकर। और पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर अब वो डालने की तैयारी करते हुए थोड़ी बहुत फील्डिंग जमावट सही ढंग से किया जा रहा है। जहाँ तक देखिए पॉइंट फील्डर के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए पॉइंट फील्डर थोड़ा सा आगे खड़े हैं। और ये लीजिए एक और रन का इजाफा रन संख्या में, क्योंकि यहाँ सिंगल लेने में ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ा दोनों खिलाड़ी को। बहुत मिस फील्ड भी हुई थी लंग मिड ऑफ के इलाके में, तो भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों खिलाड़ी सिंगल लेकर आपस में स्ट्रेट रोटेट किया है और सीधा शॉट खेलते हुए खूबसूरत तरीके से ये एक फुल शॉट हमें देखने को मिला है डाउन द ग्राउंड। आए 4, बैकफुट पर गए स्ट्रोक के लिए जगह पड़ रहा है। यहाँ पैर को अंगड़ाइयाँ लेते हुए दोनों हाथ को फैलाते हुए उन्होंने वाइड का इशारा बताया, तो एक अतिरिक्त गेंद अब डालने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज। और उठाकर के मारने के प्रयास, गेंद एकदम स्लॉट में पार्क किया, पार्किंग लॉट में आ गए पूरे 8 डजन रन। आगे 4, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो बड़ी गैप है ना 25-30 मीटर की, उसी गैप में उस गेंद को खेला है भाई। क्या बढ़िया टाइमिंग है, लाजवाब प्लेसमेंट। आगे 4, ये 4 के जरिए टोटल स्कोर देखिए अब तेज रफ्तार पकड़ी है। टोटल स्कोर 28। तो देखिए एक ओवर के बाद मात्र 10 रन बना रही थी टीम, लेकिन इस ओवर में भरपूर वापसी की है। तो अब 2 ओवर के बाद 2 ओवर के पश्चात 28 बगैर किसी नुकसान के। शायद ये बात जरूर ठल रही है, थोड़ा बहुत दिक्कत का कारण भी बने हैं दोनों खिलाड़ी, और हर संभव कोशिश जारी है मैदान पर। हर एक गेंदबाज को अब वो टटुल कर देख रहे हैं। पहले गेंदबाजी करने के लिए परवेज आए थे, बाद में शकीब को आना पड़ा, अब तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर एक गेंदबाज को टटुल कर देख रहे हैं। यहाँ विकेट लेने की ये जो प्रयास है ना वो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन शोएब देखिए कितने खतरनाक साबित हुए हैं। 8 गेंद का सामना करते हुए उन्होंने बनाया है 18 रन। तो ये स्ट्राइक रेट देखिए 200 से अधिक है। जब आप 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी कर रहे हो तब आपका आत्मविश्वास जो है ना वो बढ़ा ही रहेगा, बढ़ता रहेगा।
बहुत अच्छी गेंद डाली है, ऑप्शन से बहुत बाहर गेंद डाली थी और बल्लेबाज के बल्ले की पहुंच से दूर थी गेंद, और ये एक सही सोच है और ये कोशिश में रहना चाहिए निरंतर। थोड़ा बहुत बैकअप लेंथ भी गेंद थी, चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब लाइव पर। क्या कमाल की गेंद डाली है फहीम ने, और जोर से मारा है, क्या विकेट है या 6 है? और 6 है गुरु। हर संभव कोशिश जारी था कैच कर लेने का, हालांकि उन्हें जंप भी लगाना पड़ा लेकिन गेंद उनके हाथ में लगी नहीं। ये देखिए कितनी जबरदस्त प्लेयर हो, बिल्कुल बड़ा शॉट लगाते हुए एक लंबा छक्का रिसीव किया यहाँ बल्लेबाज ने। आकिब के बल्ले से बहुत देर के बाद छक्का देखने को मिला है। पहले बिल्कुल खामोश है, अब थोड़ा सा आक्रामकता लेकर आ रहे हैं अपने खेल में। एक और लंबा छक्का, कभी ऑफ साइड की तरफ तो कभी लेग साइड की दिशा में। ओहो अस्त व्यस्त हो चुके हैं, बल्लेबाज की गाड़ी जो है ना वो मस्त मस्त चल रही है भाई। और एक और बार जोर से मारा है मिड विकेट और लॉन्ग आउट के बीच में से, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, वाह 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छा योगदान दे रहे हैं यहाँ मिड विकेट के फील्डर। देखिए अपने पूरे जी जान तोड़कर उन्होंने उस गेंद को रोका था, तब जाकर 2 रन बचाने में वो कामयाब हुए हैं। अपवान 3 नंबर की जर्सी पे। और एक और बार जोर से मारने की कोशिश की, बैकफुट पर गए, खूबसूरत पुल शॉट खेलते हुए 1 ही रन मिला इस स्ट्रोक से, क्योंकि फिर से हरकत में आए फील्डर अपवान मिड विकेट, उस मिड विकेट के इलाके में। वेल्डिश मिड विकेट इलाके में अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली और अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। और ऐसी गेंदबाजी करनी है भाई आपको, ये लाइन और लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी करनी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई फहीम से, क्योंकि 2 छक्का खाया इस ओवर में और तकरीबन तो कुल मिलाकर 15 रन आए पिछले 6 गेंदों में। टोटल स्कोर बनी है इस वक्त 43। इक्वेशन देखिए, 18 गेंदे 27 रन चाहिए, 18 गेंदे 27 चाहिए, तो रिक्वायर्ड रन रेट है 9 की। 9 रन पर ओवर बनाना है। उस तरीके की गेंदबाजी आपको देखने को नहीं मिली है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ रही है टीम। विकेट चाहिए यहाँ, विकेट ही आपको बचा सकती है, इस मुकाबले में वापसी दिलवा सकती है। तो आपको एक आदर विकेट लेना ही है। ये दोनों में से किसी ना किसी एक खिलाड़ी की विकेट अगर आप लेने में कामयाब रहे तब ना आप वापसी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत कम है, 9 रन पर ओवर। जोर से मारने के प्रयास थी और बल्ला और गेंद की उतनी अच्छी खासी संपर्क नहीं देखने को मिली। मिड विकेट इलाका वैसे खाली था, शॉर्ट मिड विकेट यानी कि 30-10 गहरे के अंदर ही गेंद रुकी थी। और देखिए हाँ डीप मिड विकेट के फील्डर को दौड़कर जाना पड़ा, तकरीबन 10-15 मीटर दौड़कर आगे गए। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन चुरा लिया था, 1 रन चुराने में वो कामयाब रहे थे। कवर के ऊपर से दे मारा, इस बार कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का। गेंद
को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो अब हर हाल में चलना होगा भाई, एक आधर विकेट निकाल के देना होगा अपनी टीम को। बस एक विकेट की कमी है, नो बॉल है, ये नो बॉल है, नो बॉल रहेगी और नो बॉल दिया भी है क्योंकि वेस्ट हाइट थी भाई। तो चलिए अंपायर के द्वारा ये फिर हिट सिग्नल का संकेत आ रहा है, यानी कि अब बल्लेबाज को बाजू खोलने का मौका दिया है। बाजू खोलने की प्रयास थी जरूर, लेकिन गेंद उस तरीके की मिली नहीं, उस प्रकार की गेंद नहीं मिली, तो गेंद जाकर टकराई है पैड पे। घुटने पे टकराने के बाद गेंद थोड़ा बहुत दिशा बदली गई थी पॉइंट के इलाके में, पॉइंट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर सिंगल लेने का ये जो अवसर उन्हें मिला, और सिंगल बड़े आसान तरीके से चुराया था। और मैदान इलाका खाली है, गेंद बड़े आराम से ड्राइव करती हुई जा रही है लंगान बाउंड्री तक। लंगान बाउंड्री के फील्डर को आना पड़ा इस गेंद को फील्ड करने में। एक ही रन से खुश है दोनों खिलाड़ी, क्योंकि ये ओवर में वैसे देखा जाए तो एक चौका जरूर लगा है और उसके बाद एक नो बॉल भी हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा ओवर रहा है बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि देखिए जब आप 9 रन की प्रतीक्षा कर रहे हो हर एक ओवर से, तब आपको ऐसे नो बॉल और 4 रन आ रहे हो तो तब आपको दिल खोल के खेलना है, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है भाई। तो टोटल स्कोर देखिए एक बार, टोटल स्कोर है 52, टोटल स्कोर 52। 4 ओवर के बाद अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 18 रनों की ज़रूरत है, 12 गेंदे 18 रन की ज़रूरत। तो ये ओवर से भी आए 9 रन, तो रिक्वायर्ड रन रेट है 9 की। विकेट है बहुत सारे हाथ में, तो देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं करके। वर्तमान में तो अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। तो अपने गेंदबाज आएंगे गेंद लेकर, क्या वो गेंदबाज 11 नंबर की जर्सी पे रहमत रहमत, तो रहमत है। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, हेड पोजीशन उतना बढ़िया नहीं देखने को मिला, झट से पोजीशन में आकर खेलने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा। बल्ला तेज घुमा रहे थे, गेंद थोड़ा लेट आई और रिजल्ट देखिए आपके सामने है, कोई रन नहीं मिला है। शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी। तमाम रन संभावनाएं को खत्म करने के बाद अब गेंदबाज वापस चले अपनी बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और अच्छी गेंद बढ़िया है। टाइमिंग प्लेसमेंट खराब रहा, टाइमिंग तो बढ़िया थी, अच्छी खासी और बॉटम हैंड के उपयोग भी कर लिया था, अच्छे खासे बैक फ्लूट के साथ उस गेंद को खेल भी लिया था, लेकिन दिशा इस दिशा में आपको भेजना चाहिए था, उस दिशा में नहीं भेज पाए आप। शायद वही एक वजह है कि यहाँ ज़्यादा रन नहीं मिल रहे हैं। और ये लो एक और लेग बाइज क्या हमें देखने को मिलेगी, ऐसा तो लग रहा है कि गेंद जाकर शरीर पे लगी है करके, देखेंगे लेग बाइज का इशारा हो रहा है स्टेट अंपायर के द्वारा। तो ये हाइट को लेकर सवाल उठा है, ये हाइट को लेकर सवाल उठा है। इस सवाल की जवाब जो है ना वो हमारे थर्ड अंपायर के पास है, थर्ड अंपायर इसका उत्तर देंगे। थर्ड अंपायर मदन मणिकेरी को जल्द से जल्द आना होगा। तो अब थोड़ी बहुत चेक किया जाएगा ऐसे का वेस्ट हाइट, हाइट को लेकर थोड़ा बहुत सवाल जरूर उठ रहा है। सर आप देखो ना, आप देखो ना। अरे ये किधर गया भाई?
तो ये नो बॉल है। तो चलिए अंपायर का कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाइए। तो पहले उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के पास फैसला आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहा है कि नो बॉल है करके। तो लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर आपको खेल को आगे बढ़ाना है। तो खेल को आगे बढ़ाया और फ्री हिट का उस नो बॉल का कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा यहाँ गेंदबाज को, क्योंकि फ्री हिट गेंद में ज़्यादा रन नहीं मिले और विकेट मिलने की चांसेस ज्यादा है। विकेट मिलने की चांसेस ज्यादा दिख रही है। क्या कैच होगा? जी नहीं, एक ही हाथ से प्रयास जारी रख रहे थे हाँ फील्डर। और देखिए इसी बीच 2 रन चुराने में दोनों खिलाड़ी कामयाब हुए। अच्छे समझबूझ और अच्छे तालमेल की मदद से ये 2 रन पूरा हुआ है। तो लीजिए टोटल स्कोर 56 है। 8 गेंदों में 14 रन की जरूरत। उछाल कर खेला जरूर है। विकेट मिलने की चांसेस इस बार भी देखने को मिली थी। एक और बार कैच छूटा है भाई, कैच छिड़काया जा रहा है यहाँ। तो मुझे लगता है कि 4 है, तो अंपायर ने भी दे दिया है। तो लीजिए एक और खराब जाया होने दिया और एक और बार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फील्डर बहुत दूर खड़े हैं। मिड ऑफ इलाका वैसे खाली है। लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को दौड़कर आना पड़ा इस गेंद को रोकने के लिए और रनआउट का खतरा मंडरा रहा था बॉलिंग छोर पर। और लीजिए अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। उसका कहने कौन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये थोड़ी बहुत जानकारी देनी होगी हमें। रफीक का बिल्कुल लीजिए, हमारे स्कोरर का कहना है कि रफीक आ रहे हैं करके। तो रफीक नए खिलाड़ी का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में, क्योंकि रनआउट के रूप में एक विकेट मिला था वैसे पिछली गेंद में। तो अब जाकर एक नए खिलाड़ी को हम मैदान पर आते हुए देख रहे हैं। तो नए खिलाड़ी आते ही अब थोड़ी बहुत बातचीत चली दोनों खिलाड़ी के बीच में। अब स्ट्राइक पर है 77 नंबर जर्सी के प्लेयर शोएब। तो ये खिलाड़ी के ऊपर स्ट्राइक पर शोएब है, हाँ नॉन स्ट्राइक पर शोएब, स्ट्राइक पर है रफीक और अपमान गेंद लेकर खड़े हैं। इस मैच के आखिरी 6 गेंदें अब शुरू हुई। पहली गेंद में सिंगल आया है, डबल की मांग कर रहा है, रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। क्या ये रनआउट हो सकता था? रे ये गलती कर दी कहीं ना कहीं गेंदबाज ने। पलक झपकते ही अगर वो गेंद को पकड़ लेते तो यकीन मानिए यहाँ एक और विकेट मिलने वाला था रनआउट के रूप में और 1 रन भी रोका जा सकता था। और लीजिए इसी बीच एक और बार बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, ठीक से पल्ले पे आए ना, एक और बार रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। एक और बार रिस्क भरा हुआ रन लेने के लिए गए, काफी जोखिम भरा था ये रन और ये जोखिम भरा हुआ रन को वो आखिर में पूरा भी किया है। शायद ये बात को बखूबी जानते हैं, अगर जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख जरूर मिलेगी। 3 गेंदों में पहले 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। अब अगले 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत है। एक शॉट की बात है यहाँ। बल्लेबाजी टीम क्या पहली जीत हासिल कर सकेगी यहाँ? क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो दोनों टीम के लिए अभी भी 50-50 चांस है। और ये देखिए सिंगल मिलेगा बड़े आराम से। क्या 2 रन की मांग होगी? दूसरा रन के लिए निकलना चाहा, लेकिन थ्रो बहुत बढ़िया रहा। देखिए अपनी मजबूत कंधों से थ्रो कर रहे हैं लॉन्ग ऑन के फील्डर। थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा, तब जाकर 1 ही रन बना है। अब 2 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 3 रन। 2 गेंदे 3 रन की जरूरत।
और यहाँ सिंगल मिलेगा, बड़े आसानी से सिंगल मिल सकता है। 2 रन की मांग हो रही है और लो अच्छा, ये देखिए थोड़ा बहुत हिचकिचाहट में आ गए थे पॉइंट के फील्डर, उन्हें ज़्यादा ही मशक्कत करना पड़ा इस गेंद को रोकने में, थोड़ा बहुत देरी भी हुई, तब जाकर 2 रन बड़े आराम से बन गए। तो अब स्कोर्स आर लेवल, एक गेंद में चाहिए 1 रन। सिंहस्थ टाइटंस का क्या पहला जीत हम देख पाएंगे? क्या पहली पॉइंट अंक तालिका में हमें देखने को मिलेगी या नहीं? और ये देखिए रक्षणात्मक खेल कर रक्षणात्मक स्ट्रोक खेल कर वो देखिए गेंद को डिफेंसिव क्रिकेट के लिए आगे बढ़े, बड़े तो बेहतरीन तरीके से ये गेंद को टैप किया था। हाँ, सिंगल लेते ही पहला जीत हासिल करते हुए टीम सिंहस्थ टाइटंस अंक तालिका में पहली पॉइंट हमें देखने को मिली है। देर हो गई इस टीम को कमबैक करने में, लेकिन जाते जाते ये एक बड़ा मैसेज देकर जा रहा है कि अगले साल स्ट्रांग कमबैक होने वाली है करके। सिंहस्थ टाइटंस के अगले साल स्ट्रांग कमबैक होने वाली है, क्योंकि ये आखिरी मैच में हमें पता चल रहा है बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है। और पिछला मैच भी बिल्कुल ऐसा ही रहा था, 6 गेंद में 6 रन बना नहीं पाए थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार बल्लेबाजी में कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं नजर आई है। जो गलती पिछले मुकाबले में देखने को मिली थी बल्लेबाजी के तौर पर, वो गलती इस मैच में दोहराया नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारते हुए इस एक अहम मुकाबले में तो 2 पॉइंट के साथ साथ खुश भी है टीम के कप्तान, क्योंकि अगले साल जब वो आएंगे तब अच्छे खासे कमबैक करेंगे, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। और अगला मैच देखिए, अगले मैच एक तरफ मणिपाल कैपिटल्स तो दूसरी तरफ मणिपाल रॉयल्स है। मणिपाल कैपिटल्स के बना विरुद्ध मणिपाल रॉयल्स भिड़ रही है। जमीर सर, जमीर सर, जमीर सर,